to announce the launch of test series for CLAT and other law exam. Get 45 plus mock covering all entrance examination along with detailed mock analysis, 9,000 plus practice questions, topic test on every single subtopic, and remember, 3 All India open mock with video solution by the CLAT experts. The test series is curated by NLU alumni and is based on the actual exam pattern. So hurry up and enroll now and get CLAT ready. Hi everyone, very good morning. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma and this is our weekly editorial analysis. I'm so happy to see all of you guys back after one long week. I hope everything's clearly audible and visible. If you could very quickly confirm that. Good morning everyone, good morning. Yes, I'm clearly audible and visible. Thank you so much for confirming that. Namaste, good morning. Okay, so last I saw you was last Saturday, and then I come bi-weekly, so today is another Friday, then I'll see you again next Saturday, that's tomorrow. So these 2 days I try to bring one article for you through which you learn a lot. And I have a warning for you today. My warning is today's article is not easy. It certainly is not. So seatbelts intact, airbags intact. Let's shoot with the war. That's we're going to start with understanding this article that I brought. Somebody in my last class requested, मैम एक आर्टिकल लेते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक आर्टिकल लेते हैं जो मार्केट के बारे में बात करेगा, इकोनॉमी के बारे में बात करेगा. Here it is, and I'm so happy to see so many new kids in my class today. Welcome to this session. चलो देखते हैं क्या करने वाले आज सेशन में. The agenda of the session is that we will be taking one article from a source that I'm not going to disclose. But then, source इसलिए disclose नहीं करूंगी क्योंकि I don't want you to read the topic of the article, the gist of the article जो उसके beginning में लिखा हुआ होता. I don't want you to read that. So that, because examination में नहीं लिखा हुआ होगा, तो उसको कैसे समझेंगे? इसलिए मैं आपको source नहीं बताऊंगी. By the end of the class, of course, आपको source पता लग जाएगा कहाँ से article लिया मैंने. Vocabulary आज बहुत सारी है, tricky है, difficult to understand है, unknown words हैं, jargons है बहुत सारे. तो I am very happy that I brought an article that's difficult for you today, because अगर ऐसा article exam में आ गया, उसको handle कैसे करना है, उसकी बात करेंगे आज. ठीक है, कैसे पढ़ना उसको, नहीं पता मुझे ऐसे words, नहीं पता मुझे ऐसे jargons, तो कैसे पढ़ना चाहिए article, उसकी बात करेंगे और कोशिश करेंगे बहुत सारे inference draw करने की. आज बहुत फन होने वाला है क्लास में. ये क्लास certainly minimum 40 minutes की होने वाली है. If you still haven't eaten your breakfast, go get it. Sit with me in the class. Breakfast खाते खाते कर लो because क्लास लंबा होगा थोड़ा सा. मेन आइडिया भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टोन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ये सब चीजें करेंगे आज की क्लास में. ओके, yes, exactly. We haven't taken exactly. This is a tricky article for sure. ठीक है, तो before I show you the actual article, a couple of things. One, we have launched our test series, which is curated by all of us and all the NLU alumni that we have. Enroll yourself quickly for this test series if you want to get a real life experience of how CLAT can be and to prepare yourself better. The details of the program, that is the test series, is there under my video in the description box. You can refer to that and enroll yourself very, very quickly. Plus, we have our CLAT 2023 Hackathon Part 1. 6 hours non-stop happening on 9th of October. That is 12 to 6 p.m. Miss नहीं करना है इसको. 12 to 6 p.m. Keep yourself free. Regularly attend करना है. You have a blessing. You can eat in between. You can go to the washroom and come back in between. But 12 to 6 p.m. you have to be live with this. Don't miss out on that. So everyone, ready for the article that I have? ठीक है? Seat belts on and airbags intact. Check करवा लो सब कुछ. पढ़ो article खुद से first page. ओके, अब पढ़ के मुझे बताओ क्या समझ में आया उस फर्स्ट पेज से, क्या बोल रहा है ऑथर इस फर्स्ट पेज में, टॉपिक क्या है आर्टिकल का, किस जॉनर को बिलोंग करता है, ये किस साइंस को बिलोंग करता है, ये बात किस चीज की कर रहा है. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. जल्दी से फर्स्ट पेज देखते हैं. रीड दिस एंड सेंड मी अ डन. आई होप माय
torso isn't hiding the content. No, it is not. चलो जल्दी से पढ़ लो. All the best. If you're done, what does it talk about? Argument क्या है author का इस पेज में? क्या बोलना चाह रहा है author? क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा author इधर? So many new words, so many difficult words. Contextually meaning निकालना सीखो. क्या बोल रहा है author इधर? क्या आर्ग्यूमेंट बना रहा है इधर? बताइए मुझे एक लाइन में. ऑथर ने एक क्लेम किया है, बहुत बड़ा क्लेम किया है यहाँ. क्या क्लेम है ऑथर का? बताइए. अलीफिया समझाऊंगी व्हाट इज मंकिश वर्च्यू. सी इफ यू गाइस हैव बीन कमिंग रेगुलरली टू माय क्लासेस तो आपको ये दो वर्ड्स पता होंगे, वर्च्यू एंड वाइस. मैं आज फिर से समझाऊंगी वर्च्यू एंड वाइस क्या है. लेकिन क्रिटिसाइज मंक्स, ओके, द actions of penance, fasting done by religious preachers are worthless. पता नहीं क्यों पहले मेरा, अच्छा कनिष्का बच्चे मॉक्स का डिस्कशन क्लास के एंड में करूंगी. ओके अच्छा देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, बिफोर आई प्रोसीड, बिफोर आई रीड मोर कमेंट्स फ्रॉम योर साइड, दो चीजें समझते हैं. ठीक है, एक होता है वर्च्यू और दूसरा वर्ड है वाइस. हम जब भी एक फिलोसफिकल आर्टिकल पढ़ते हैं, ह्यूमिलिटी इन मंक्स, सिजान, यार सिजान तुम ना अंडर कॉन्फिडेंट हो, तुमको समझ में सब चीज आ रही है, तुम बस अंडर कॉन्फिडेंट हो. आप जब मुझे बताते हो चीजें आप बिल्कुल सही बताते हो. प्लीज डोंट लूज दिस कॉन्फिडेंस गाइज. कॉन्फिडेंस अपने में रखना बहुत जरूरी है जब आप मॉक देते हैं, जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिजान अगर आई थिंक आपका जो लो स्कोर है ना वो सिर्फ अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से है. वर्क ऑन दैट. बैक टू वर्च्यू एंड वाइस. जब भी हम एक फिलोसफिकल आर्टिकल लेते हैं, ये आर्टिकल फिलोसफिकल है कि नहीं हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि कैपिटलिज्म मेंशन्ड है मैं इसको स्ट्रिक्टली फिलोसफिकल आर्टिकल अभी नहीं बोलूंगी मैं. लेकिन जब भी आप फिलोसफिकल आर्टिकल्स देखते हैं ये दो वर्ड्स बहुत कॉमनली डिस्कस्ड होते हैं फिलोसफिकल आर्टिकल्स में. ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए. वेरी वेरी लाइकली फिलोसफिकल आर्टिकल्स इन वर्ड्स की बात करेंगे. दिस इज द कोर ऑफ फिलोसफी. तो इन दोनों वर्ड्स को समझिए सो दैट इफ अ फिलोसफिकल आर्टिकल और समथिंग लाइक दिस कम्स अप इन द एग्जामिनेशन आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजीज पता हो. कौन बताएगा मुझे वर्च्यू क्या है? वर्च्यू इज आपको सही गलत पता है और आप हमेशा सही करते हैं. आप हमेशा वो डिसीजंस लेते हैं जो ह्यूमैनिटी के फेवर में होता है. वाइस मीन्स इविल, बैड इंटेंशन. सो फॉर एग्जाम्पल आई सॉ someone dropping some money on the road. मैंने उसको उठा के आइसक्रीम खा ली, that's a vice. बट मैंने उसको उठा के उसी पर्सन को वापस दिया, that's a virtue. Is the difference between virtue and vice clear? Something that's correct according to morality. Virtue directly links to morality. Automatically, vice means something that's immoral. Okay? So, if you do something that's morally correct, it belongs to virtue. Something that's immoral,
It belongs to vice. अब देखो, हम रिलीजन की बात करते हैं, हम फिलॉसफी की बात करते हैं. दुनिया में बहुत सारी तरह के वर्च्यूज है और बहुत सारी तरह की वाइस हैं. Yes, Shreya, exactly. That's like my lawyer student. To be lawyer. ठीक है, तो हम जब दुनिया में देखते हैं ना, बहुत सारी तरह की वर्च्यूज है, बहुत सारी तरह की वाइस है. एक मंक होता है जिसको आप शायद बहुत सारे लोग मॉन्क प्रोनाउंस करते हैं, बट इट्स प्रोनाउंस्ड एज अ मंक. मंक होते हैं, साधु होते हैं. उनका इंक्लिनेशन होता है कि हम वाइस से सबसे दूर रहें और वर्च्यू के सबसे पास रहें. रिलीजन भी यही सिखाता है, फिलॉसफी भी यही सिखाता है. हर कोई रिलीजन आप देखें, वो आपको वाइस से दूर करते हैं, आपको वर्च्यू के पास लाते हैं. अब इसको हम समझते हैं इस पेज के कॉन्टेक्स्ट में. ऑथर ने बोला है मंकिश वर्च्यूज. मंकिश वर्च्यूज क्या होते हैं? एक मंक जिन वर्च्यूज को फॉलो करता है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक साधु को देखते हैं, कहीं तपस्या कर रहे हैं वो. ही सिटिंग इन सम Himalayan mountain. He's sitting there. He doesn't feel cold. He doesn't feel hungry. He doesn't feel attachment to the worldly pleasures. He is on his own. He has, उसको कोई लालच नहीं है, उसको कोई greed नहीं है, उसकी कोई physical needs नहीं है, hunger नहीं है, thirst नहीं है, sexual pleasures नहीं चाहिए उनको. All of these, according to a monk, are vice, जो आपको इस दुनिया से में बांध के रखते हैं. A monk is going to be very close to virtues. Monk के virtues होते हैं being away from the worldly pleasures. So अब पेज का context समझते हैं. There's a philosopher, David Hume, who says humility. Humility क्या होता है? Humble होना, simple होना. Humility एक monkish virtue है. Monks जैसे लोगों के पास होती है humility. Okay? बट जब उन्होंने ह्यूमिलिटी को मंकिश वर्च्यू बोला है, उसको उन्होंने पॉजिटिवली बोला है या नेगेटिवली बोला? इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. एग्जैक्टली, आइसोलेशन विद इट्स ओन वर्च्यू. एग्जैक्टली लक्ष्मी. द ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग द मॉडेस्ट नेचर that of monks. That's a virtue. Virtue तो अच्छी चीज है. Dude, उसने इसको criticize क्यों किया? That's the biggest point. He has written a deliciously acerbic passage. This is an extract from the passage. Deliciously acerbic. होमवर्क है आपका, अभी मत रिप्लाई करना. आपका होमवर्क है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड है यहां deliciously acerbic में. अभी आंसर मत करना, I'll not read your comments, okay? अब he says it's deliciously acerbic. Deliciously acerbic क्यों? मतलब acerbic है, rude है. acerbic का मतलब rude है. बट ये जो rude है ना, वो भी बड़ा मजेदार है पढ़ने में. It's very interesting. So it's deliciously acerbic. ये एक्सट्रैक्ट में उन्होंने लिखा है कि सेलिबेसी है, फास्टिंग है, पेनेंस है, पश्चाताप है, मॉर्टिफिकेशन, सेल्फ डिनाइल, ह्यूमिलिटी, साइलेंस. ये सारी चीजें मंक्स में देखते हैं, राइट? ये चीजें कभी भी कैपिटलिस्ट मार्केट नहीं बना सकती. माय फर्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज कैपिटलिज्म? व्हाट इज कैपिटलिज्म? Now, when I am explaining this article, please see if your understanding of the article is similar to my explanation. The lines that I'm focusing on, did you pay attention to that? The words that I'm highlighting, did you try to understand that? ये ध्यान देना आपको. Okay? Business, money, basically private ownership. तो गवर्नमेंट मार्केट रन नहीं करेगी, प्राइवेट ओनरशिप से मार्केट रन होगा. एंड मेकिंग मनी इज द प्रायोरिटी ऑफ द मार्केट, राइट? तो ये हो गया. एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटिटी, एंड दीज प्राइवेट एंटिटीज दे ट्राई टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, इवेंचुअली सपोर्टिंग द कॉमनर्स. लेकिन उनका एम कॉमनर्स को सपोर्ट करना नहीं है, क्योंकि अगर कॉमनर्स को सपोर्ट करना एम होता उस तरह के मार्केट का, तो गवर्नमेंट के हाथ में मार्केट होता. यहां मनी मेकिंग is the prime aspect of this kind of a market, and that's called capitalistic market.
where private ownership runs the market. फ्री एंटरप्राइज है एग्जैक्टली ठीक है चलो आगे देखते हैं समझते हैं कि सेज ये सारी वर्च्यूज है ना अगर आपके पास ऐसी मंकिश वर्च्यूज ये सारी चीजें कैपिटलिस्ट मार्केट नहीं चला सकती हैं हम समझेंगे क्यों ऐसा क्लेम किया ऑथर ने विल अंडरस्टैंड दैट लेटर ऑन दैट एज अ ह्यूमन as a normal human being it's very difficult to surpass these to come to this position where you follow celibacy mortification self-denial humility silence solitude it's very difficult for a human to attain these virtues अब देखो जैसे ही मैंने बोला humility is a virtue can I say not being humble is a vice? Can I say that? Answer this question because I've already explained what is a virtue and what is a vice. If I say humility is one of the virtues, can I say not being humble is a vice? Can I also infer that capitalistic market, successful capitalistic markets are full of vice? क्या ये इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं एब्सोल्युटली यस फिलॉसफी दो एस्पेक्ट्स वर्च्यू वाइस अगर ये वर्च्यू है तो इसका ऑपोजिट वाइस हुआ ये क्या है ह्यूमिलिटी अगर ह्यूमिलिटी वर्च्यू है तो उसका ऑपोजिट हो गया वाइस अगर ह्यूमिलिटी कैपिटलिस्टिक मार्केट नहीं चला सकती मतलब वर्च्यूज कैपिटलिस्टिक मार्केट नहीं चला सकते इट्स अ सिलोजिज्म क्वेश्चन ऑपोजिट चीजें मार्केट चलाएगी मतलब वाइस चाहिए मार्केट चलाने के लिए पैसे कमाने के लिए वाइस चाहिए यू नीड टू बी मीन यू नीड टू हैव एन अर्ज agreed to make more money and that's why humility probably isn't going to make a capitalistic market okay let's continue next page yahan I hope everything is clear chalo aage dekhte hain read the next page make your own inferences and send me a done Here that paragraph, that deliciously acerbic paragraph ends, okay? Here it ends. Now here the author starts his own claims. Okay. Do you see a paradox here in this page? Were you able to look at that paradox? Yes, Vanshika. Paradox दिखा सबको इधर. Where is the paradox? Which paragraph is it in? If you did not look at the paradox, you should have. The paradox is in the last paragraph. It's a paradox. Yes, capitalism versus humility. Let's talk about that. सबसे पहला, as we said, virtues and vice हैं. तो अगर humility virtue है तो उसका opposite vice हो गया. Okay? And then he also claims, he also explains कि अगर किसी person जो कि virtuous है, like a monk, after the monk dies, हाँ, of course उसका calendar में एक place हो जाएगी that this is the day he died. उसका celebration भी हो सकता है. But while he's alive, एक ऐसे पर्सन का जो कि सेल्फ इंटरेस्ट से बहुत दूर है, सेल्फ डिनाइल में है, सेलिबेसी में है और ऐसे ही वर्च्यूज को फॉलो कर रहा है जो कि एक मंकिश वर्च्यू है,
While he is alive, nobody would celebrate him. हाँ, वैसे ही लोग उनको सेलिब्रेट करेंगे जैसे वो हैं खुद. तो अगर आप एक मंकिश वर्च्यू रखते हैं, आप ही के तरीके के लोग आपको सेलिब्रेट करेंगे. इस वर्ल्डली प्लेजर, इस दुनिया में जहां वर्ल्डली प्लेजर्स हमारी प्रायोरिटी है, राइट? Growing up to be a big judge, making loads of money, you know, that respect that I get from this society, all this is greed. Is that not? अगर हम एक strict term में use करें, I work, it's for my own greed, probably because I want to make money, probably because I want to keep myself busy, probably because this is what I desire teaching students. ये सब greed है, personal greed. So he says, उसका celebration नहीं होगा. Now let's understand इस पैराग्राफ में ये पैराडॉक्स है क्या, ये कॉन्ट्रडिक्शन है क्या जो ऑथर ने यहाँ बताया है. Some people are saying a few things. All religions give a same teaching about being humble or wise. Yes, exactly. जैसे हम जैनिज्म में देखते हैं, तो बहुत एक important day होता है उनके लिए where they promote being humble, saying sorry, penance, पश्चाताप, अगर मैं हिंदी में वर्ड यूज करूंगी तो penance in English. It's there in every single religion. It's there in Islam, Judaism, Hinduism, Christianity. It's there everywhere. Yet, ये चीजें कैपिटलिस्टिक मार्केट नहीं बना सकती. अभी तक आपने इतना समझ लिया होगा कि ये आर्टिकल अभी तक तो फिलॉसफी की बात कर रहा है, बट कैपिटलिज्म का डिस्कशन हुआ नहीं है. वेरी लाइकली इट्स गोइंग टू फॉलो, बिकॉज अभी तक ऑथर सिर्फ प्लॉट सेट कर रहा है. लेट्स क्विकली डिस्कस एग्जैक्टली यहाँ पैराडॉक्स क्या है. ही सेज ही अग्रीज विथ ह्यूम्स पॉइंट. ह्यूम जो पिछले पैराग्राफ में डिलीशियसली ऐसे एक पैराग्राफ में ह्यूम ने पॉइंट बनाया था. If progress in capitalism is fueled by people's pursuit of self-interest, मेरा self interest है, I'm making this pen, I want to sell it maximum, I want loads and loads of people to buy this pen, ये self interest है. अगर मैं एक monkish virtue रखती हूँ self denial का, can I be a successful entrepreneur? Can I make a successful capitalistic market? I can't. Do you see the relationship here between humility and or humility as a vice and capitalism, where they cannot go hand in hand? Do you see the relationship, everyone? Do you see the relationship? Exactly, the reason we fast too. They cannot go hand in hand. आपके लिए greed बहुत जरूरी है for making money. If you don't have that greed, you cannot run a successful business. It needs self-interest. चलो आगे बढ़ते हैं, okay? But पैराडॉक्स क्या है, आयरनी क्या है? बचपन से हमको हम्बल होना सिखाते हैं, लेकिन हम्बल तो मेरा बिजनेस नहीं चला सकता. कोई तो कोरिलेशन होगा कि बचपन से हम्बल होना सिखाते हैं, फिर भी बड़े होके हम सोचते हैं कि हम्बल होने से तो बिजनेस नहीं चल सकता. लेट्स सी, लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. Read the next page, make your own inferences and send me a done. Prediction, I didn't get your statement. Now he is resolving the paradox. Muskan and everyone else, please see what Muskan did. आपको ऐसे ही सोचना है. देखो बच्चे, अंडरस्टैंड दिस. जब कोई डिफिकल्ट पैसेज आता है, एक ऐसा टॉपिक जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हो, एग्जैक्टली अलीफिया, बिल्कुल यही करना है. तो
एक तो आपको उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, तो मेरा एम अभी यही है कि मैं आपको उन टर्मिनोलॉजी से ओके कर दूं। प्लस मैं आपको ये बताऊं कि आपको कैसी चीजों पे फोकस करना है so that answering questions is easy for you and you don't have to refer back again and again to the passage to answer them. इन्फरेंस क्वेश्चन के लिए रेफर बैक करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे क्लैट का पेपर? ये इतना लेंथी पेपर है, एलएच इवन मोर। सो ऐसी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा जैसी चीजों पे मुस्कान और नलीफिया ने ऑलरेडी किया है। अगर आपने नहीं किया, प्लीज लर्न टू फोकस ऑन सच थिंग्स। पैराडॉक्स आपको खुद को ढूंढना चाहिए, उसका रिजॉल्विंग जो ऑथर ने किया वो भी आपको खुद को लोकेट कर लेना चाहिए था अभी तक। ये मेरा सजेशन है। अगर आप नहीं कर रहे, ध्यान दीजिए मैं कैसे पॉइंट आउट कर रही हूं। मैंने कुछ लाइंस हाईलाइट करी है, देखो मैंने क्यों हाईलाइट करी है लाइंस। फर्स्ट लाइन मैंने इसलिए हाईलाइट करी बिकॉज ये ऑथर का क्लेम है और हम क्लेम्स में हमेशा ध्यान देते हैं। क्लेम्स होती है ऑथर की पर्सनल ओपिनियंस जो ऑथर एज एन आर्ग्यूमेंट ही पुट्स इट अक्रॉस। Claims are the basis of your inference questions, main idea questions, tone questions, and you can eliminate many other options as well. Claims पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। Claim क्या है? Claim ये है कि ह्यूम के साथ तो मैं अग्री करता हूं, लेकिन शायद ह्यूमिलिटी और कैपिटलिज्म साथ जा सकते हैं, दे कैन गो वेल टुगेदर। और इसके लिए हमें ह्यूमिलिटी की डेफिनेशन समझना चाहिए कि ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज ह्यूमिलिटी बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स हियर। एग्जैक्टली अलिफिया, द लास्ट पैराग्राफ इज ओनली एन एग्जांपल एंड दैट कैन बी स्किम्ड। अब मुझे ये बताओ ह्यूमिलिटी होता क्या है बिफोर वी कोरिलेट ह्यूमिलिटी एंड कैपिटलिज्म हियर। एग्जैक्टली श्रेया, क्या होता है ह्यूमिलिटी? कौन बताएगा ह्यूमिलिटी क्या चीज है? ब्रैग ना करना, बोस्टफुल ना होना, हम्बल होना, अपने आप को लोगों से आगे ना रखना, लोगों को अपने आगे रखना। All of these are traits of humility. Having a modest view of oneself. मैं आगे नहीं हूं लोगों से, मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं लोगों से। ओके, बीइंग हम्बल, ठीक है, तो ये हुआ ह्यूमिलिटी। अपनी इंपॉर्टेंस लो पे रखना, लोगों की इंपॉर्टेंस आगे रखना। अब ऑथर कह रहा है ह्यूमिलिटी और कैपिटलिज्म साथ चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं? अगर ह्यूमिलिटी आप में, आप अपने आप को पीछे रख रहे हो, आपका सेल्फ इंटरेस्ट पीछे, आप कैसे प्रॉफिट बनाओगे मार्केट में? आपको अपना सेल्फ इंटरेस्ट आगे रखना पड़ेगा। येट ह्यूमिलिटी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कैपिटलिस्टिक मार्केट बनाने के लिए। देखो हैंड इन हैंड ऑथर का ये क्लेम है। ये पैराग्राफ ट्रिकी है, प्लीज ध्यान से इस पैराग्राफ को समझो। मैं एक एक लाइन समझाऊंगी इसमें। ओके, इट्स अ ट्रिकी वर्च्यू, क्योंकि लोग कंफ्यूज जाते हैं ह्यूमिलिटी के बारे में पढ़ते हैं जब। तो इफ यू से यू सो, आप जब बोलते हैं आप हम्बल नहीं हैं, मैं हम्बल नहीं हूं, मैं सर्टेनली हम्बल नहीं हूं, मैं सच ही बोल रही हूं ना। मतलब मैं बोल रही हूं अगर मैं लालची हूं तो मैं सच ही बोल रही हूँ कि मुझे में लालच है, मैं मुझ में ग्रीड है, मैं हम्बल नहीं हूं तो सच ही बोल रही हूँ। लेकिन अगर कोई पर्सन कह रहा है मैं बहुत हम्बल हूं, डूड अब आप ब्रैग कर रहे हो। एक हम्बल पर्सन कभी भी जाके ये नहीं बोलेगा कि मैं हम्बल हूं, मुझे कोई ग्रीड नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है। यू आर लाइक somebody who is humble will not go and brag about he not being humble. So if somebody says I'm not humble, I am humble, he's probably lying. That's not true. Okay, now ये tricky paradox क्या है इसको समझो। To be humble is good. मैं humble हूं, मैंने बोला नहीं किसी को, but I am humble, I'm polite, I don't put myself before anyone else. It's good, but to be humbled is really bad. What is being humbled? कोई आपको करेक्ट करे, डूड हम्बल हो जाओ, आप हम्बल नहीं हो, that's not a good sign. That means you're pretty arrogant there. Do you see the difference? What is to be humble and to be humbled? Do you see the difference, everyone?
Do you understand what are these two tricky phrases mentioned in the passage? Humility has to be known by actions, Preeti. Yes. मुस्कान अब आया समझ में? टू बी हम्बल क्या है? मुस्कान फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आके बोलूं आप बहुत एरोगेंट हो मुस्कान, यू नीड टू बी हम्बल. Right now you are being humbled. It's not a good trait for sure. So that's the difference. To be humble, मैं humble हूं, अपने आप में मैं चुप हूं, good. But अगर कोई आके मुझे correct करता है कि आप humble नहीं, आपको humble होना जरूरी है, that's not a good sign. That's the tricky part here, which I've already explained. Okay, this is basically an explanation. You can skim through this part. Okay, एक example है जो ये समझा रहा है. But then ये argument convenient क्यों था जो दिया गया था by St. Francis? Why was this argument convenient? इस पे क्वेश्चन आ सकता है. It's a factual question. आप बता सकते हो it was convenient because they already had a lot of money. तो उनके लिए बड़ा आसान था बोलना कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको ग्रीड नहीं चाहिए, मेरे पास तो पुश्तैनी पैसा पड़ा है, मुझे कोई मतलब नहीं. आसान है बोलना ना. So if Ambani's children say we don't want to make money, it automatically means they have a lot of money. What will they do by making more money? Jeff Bezos and his kids say such things. So this is a factual question. You can easily answer that. Next page पे चलते हैं. Read this page, make your own inferences, send me a done. डरना नहीं है ये वर्ड्स देख के, स्किम करो. ओके, देखो वैसे तो मेरा अजम्पशन है कि ऐसे कैल्विनिज्म, प्यूरिटन्स, प्रोटेस्टेंट्स ऐसे वर्ड्स आने नहीं चाहिए क्लैट जैसी एग्जाम में, बट ये एलेट में आ सकते हैं. और अगर आ जाएंगे तो आपको डरना नहीं है बच्चे. देखो ये आपका स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए. मैंने क्यों ये आर्टिकल लिया है, मैं स्पेसिफिकली आई कुड हैव डिलीटेड दिस पैराग्राफ. मैंने डेलिबरेटली नहीं डिलीट किया बिकॉज आई वांट यू टू नो कि ये आपके स्पीड ब्रेकर्स नहीं होने चाहिए. आपको रफली एक आइडिया लगाना है. अभी तक अगर आपने पैराग्राफ समझ लिया है, पैसेज समझ लिया है कि ऑथर क्या क्लेम कर रहा है, ये उसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन है थ्रू मोर एग्जाम्पल्स. जैसे ये एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है मार्टिन लूथर का, ये एक एग्जाम्पल है जैसे प्रीवियस पेज में एक एग्जाम्पल था. वो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा है. येट आई विल एक्सप्लेन एक लेमैन लैंग्वेज में कैल्विनिज्म क्या है, प्यूरिटन्स क्या है. कैल्विनिज्म जैसे आप क्रिश्चियनिटी में देखते हैं प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, राइट, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. सो कैल्विनिज्म प्रोटेस्टेंट्स का ही एक सबसेट था, एक ब्रांच थी जो प्रोटेस्टेंट्स को उसके आइडियाज को प्रमोट करती थी. आपके लिए इतना जानना भी सफिशिएंट है. ओके, एंड प्यूरिटन्स आर बहुत ही रिजिड ऑर्थोडॉक्सी पीपल. तो ये जो क्लेम है ना, ये उनका, ये ऑर्थोडॉक्सी पीपल का कि हमको तो भगवान ने भेजा है यहाँ लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, लोगों के लिए सर्विसेज देने के लिए, हमको हेवन से भेजा गया है नीचे. दीज वर दोज ऑर्थोडॉक्स. ओके, सो प्यूरिटन्स आर रिजिड, जो रूल्स को फॉलो करते हैं उनको ब्रेक नहीं करते हैं. इतना आपके लिए जानना भी सफिशिएंट है. अदरवाइज इस पेज में अगर कोई क्लेम है तो सर्टेनली इस पैराग्राफ में नहीं है ऑथर का पर्सनल क्लेम. सो यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड. नाउ व्हाट इज द सोर्स? द सोर्स इज
अभी पैसेज खत्म नहीं हुआ बाय द वे, बट सिंस मुस्कान हैज आस्क्ड मी एंड आई डोंट वांट टू मिस आउट द कमेंट, इट्स द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स से आर्टिकल लिया मैंने। आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ दिस आर्टिकल बिकॉज इट नीडेड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ये पैराग्राफ भी आप स्किप कर सकते हो बिकॉज वो बता रहे हैं कि बहुत सारा उस एरा में वेनिस में, फ्लोरेंस में बिजनेस स्टार्ट हो चुका था। अभी तक क्लेम कंटिन्यू चल रहा है कि वो दोनों दे गो हैंड इन हैंड, बट समझना थोड़ा ट्रिकी है कि ह्यूमिलिटी क्या चीज है। आगे देखते हैं। रीड दिस पेज, मेक योर ओन इन्फ्रेंसेस। श्रेया, ये होमवर्क है। चलो, इट्स एक्चुअली an oxymoron. अब आपको क्लियर होगा कैसे ह्यूमिलिटी एंड कैपिटलिज्म दे गो हैंड इन हैंड। Shreya, CLAT usually in the last 2-3 years hasn't given us a lot of articles from newspapers. एक आ जाएगा out of 6 passages, 4-5 passages में से 4 में से एक आ जाएगा, but usually वो books के extracts होते हैं। सिंपल, आपको अपने लिए शर्ट खरीदनी है, आप मार्केट जाओगे, 4 दुकानें, एक दुकानदार is not humble, he is rude to you. Will you still stay there to buy the shirt? I would rather pay 20 more rupees, go to other shop and buy a shirt. You see how humility and capitalism go hand in hand? Being humble is necessary for business to grow. If some guy is a jerk, you don't have to do business with them. You go to somebody else. You move to the next stall. Being humble is so necessary. रोहन, अगर आपको डिफिकल्टी होती है पैसेज समझने में, इस क्लास का यही पर्पस है। कैसे पढ़ना है पैसेज को प्लीज ध्यान दो। मैं कौन सी लाइन समझा रही हूं, आपको उन लाइंस को लोकेट करना है। वो लाइंस जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो लाइन जहां से क्वेश्चंस स्टेम हो सकते हैं, उनको ब्रेक करके पढ़ो, उनको लिंक करके स्टोरी बनाओ जैसे माइंड में मैं आपके बना रही हूं। ओके, if back to this passage, you have to be humble if you need to grow your business. And such a beautiful line, commerce is a cure for the most destructive prejudices. I don't care आप किस religion को belong करते हो, I don't care आप किस cult को belong करते हो, आपका sexuality क्या है, dude, तुम humble हो और तुम मुझे product दे रहे हो in a reasonable price, I'm going to buy it from you. किसी भी तरह का prejudice खत्म कर सकता है commerce. I love this line and I'm sure you do as well, right? So अगर आप agreeable terms में हो मुझसे, आपका business flourish करेगा. I'm going to buy it from you. People are going to buy it from you. Okay, so that's all. अच्छा, capitalism won't take root. Take root भी समझा देती हूँ. Taking root is जैसे आप एक sapling plant करते हो तो उसकी roots धीरे धीरे grow करके it keeps holding the soil, it flourishes. Taking root is to get hold of the ground and then flourish. अगर आप humble नहीं है, capitalism won't take root. It will not hold the ground and flourish. नहीं चल सकता. In the absence of humility, market नहीं चल सकता. Okay? So, yes, let's go to the next page. Here is the last page. Read this and see the conclusion. Absolutely, being humble attracts consumers. Of course. Farhana, मैं आपको बताती हूँ. Stick with me
till the end of the class. ये पेज डिस्कस करके मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए आने वाले 2 मंथ्स में मेरे अकॉर्डिंग, जो आपको एब्सोल्युटली हेल्प करेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने में. बट जो बताऊंगी उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है. नो इफ्स नो बट्स देयर. श्रेया, फर्स्ट पैराग्राफ पे हमेशा एक्सट्रीमली ध्यान दो, ये आपको हेल्प करेगा. फर्स्ट पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ो, वो आपकी इश्यू को रिजॉल्व कर देगा. यस लक्ष्मी, दैट्स हाउ यू रीड इट. Do you see the difference in the meaning of humility as a monkish virtue and as a capitalistic virtue? दो डिफरेंस आए समझ में आपको डेफिनेशन में, क्योंकि ह्यूमिलिटी के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं. एक मंक के लिए ह्यूमिलिटी का मीनिंग कुछ और है, बट कैपिटलिस्टिक मार्केट में ह्यूमिलिटी का मीनिंग कुछ और है. और क्योंकि उसका मीनिंग कुछ और है, दे गो हैंड इन हैंड. मंकिश वर्च्यू वाली ह्यूमिलिटी विल नॉट गो विद द कैपिटलिस्टिक मार्केट, बट वो डेफिनेशन जो इस मार्केट को लिंक करती है वो सर्टेनली प्रॉफिट बढ़ाएगी. तो मैं बता देती हूँ क्या, जिसको नहीं समझ में मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस है. मंकिश वर्च्यू की ह्यूमिलिटी है, सेल्फ इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है. सेल्फ इंटरेस्ट नहीं तो प्रॉफिट कैसे बनाऊंगी. कैपिटलिस्टिक मार्केट के ऑपोजिट हो गया वो वर्च्यू, ह्यूमिलिटी. लेकिन यहां एग्जैक्टली वंशिका, यस. लेकिन यहां वो कह रहे हैं भाई आपको ह्यूमिलिटी ये होनी चाहिए कि मैं चेंज होने को रेडी हूं, मैं मार्केट से सीखने को रेडी हूं, मैं बेस्ट हूं, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है. मुझ में ह्यूमिलिटी है, मैं सीखूंगा, मैं इनोवेट करूंगा, मैं लोगों को सुनूंगा, एंड देन आई ट्राई टू ब्रिंग इन अ बेटर प्रोडक्ट. If you have that humility, it will fuel innovation and growth and thus aid to capitalistic market. Okay, so he says, who is wise? One who learns from every person. If you learn from every person, you're going to grow in your own business. So good advice. Humility can be smart. Humility का मतलब naive होना, unscrupulous होना नहीं है. Humility का मतलब है to be smart. That's the closure of the passage. Okay, so I hope you've understood this passage. Now, my 2 cents here before I show you anything. I hope now you understand the summary of the passage, that how humility can be opposite to capitalism as well as go hand in hand with that. The author is explaining exactly this throughout the passage. That's the summary of the passage. That's the gist of the passage. अब आपका होमवर्क क्या है? You have to comment under my video. Let me show you this. आपको मुझे बताना है deliciously acerbic वर्ड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगा है. You have to comment under my video. Okay? I'll disclose the answer in tomorrow's session. आपको मेरे वीडियो के नीचे, अभी चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है. नाउ बिफोर आई टेल यू एग्जैक्टली मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ आने वाले 2 महीने में क्या करना चाहिए आपको, उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ मैं आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करती हूँ. मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ क्लैट 23 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसका स्केड्यूल है, जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लो. इफ आई डोंट लुक गुड, दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, एंड रोड मुझे नहीं पता, मैं कल बताऊंगी आंसर. नेक्स्ट 6 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर का स्केड्यूल. ठीक है, all these are going to be live on our YouTube channel. Exactly, Vanshika, correct. Correct, Devadrita. Now, all those people who are new to my class, you should know things that I expect you to do in the next few months that you're left with. बच्चे देखो,
एक चीज, I have a session today at 5 p.m. on the app which exactly talks about how to increase your scores in English. Let me address this there. 5 p.m. today on our app. Download the app if you haven't done that yet. I'll exactly tell you आपको क्या करना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है और क्या चीजें करनी है अभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए. See me live there. Follow us on YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, and download our app on Google Play. So I think that's going to be all today. रोहन, आज आप 5 बजे वाली क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? ऐप डाउनलोड कर लेना, अभी भी ऐप में नहीं हो तो 5 बजे फ्री क्लास है ऐप में. I'll be there. अच्छा, by the way, if you haven't hit the like button yet, कर लो, कमेंट कर दो. अगर आप बाद में देख रहे हो वीडियो तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल अभी भी नहीं किया तो. Yes, Aeon article. Thank you, Sijan, for reminding me. Sharing Aeon in my background, sharing a couple of articles which I expect you to read. Here you go. Aeon शेयर कर रही हूँ और कल Nautilus से शेयर करूंगी. Aeon articles, here you go. I don't know if background में it's going to work or not because I'll still try to figure it out. Aeon. Here it is. Let me see if it works. PPT. Works. Okay. Aeon से 2 आर्टिकल सजेस्ट कर रही हूँ आपको जो I want you to read. Here you go. I had found 2 articles a couple of days back. Wait. Yeah, one was this, The Utopian Machine, and the other was, where is it? I'll show you. Give me a second. Yeah, here it is. Democracy or Apocalypse. This is one article, and the other is The Utopian Machine. I want you to read both these articles with the course of the next week. कल 2 articles Nautilus से या The Guardian से या किसी और वेबसाइट से आपको सजेस्ट करूंगी जो आपको पढ़ना है, ठीक है? नाम लिख लो इनका, The Utopian Machine and Democracy or Apocalypse. Winding up the class, everyone. See you tomorrow again, 11 a.m. and on the app at 5 p.m. Have a very good day, everyone. God bless you.